Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, as you know that we have already started with the second unit of our GK, okay, that is science and technology. Okay, so this was the second unit and that we have already started in the previous session. Today I am going to start with one more topic from the same unit number 2. The next topic is the moving machines. So this is the next topic that we'll discuss in today's session. Okay, so let's talk about the one of the very important machine that plays a vital role in our lives. So let's begin with the heading that is given here. Imagine what life must have been like before cars were invented. In what ways have cars changed our lives since then? Learn more about these wonder machines. Okay, so now here we will talk about in this topic we'll talk about the cars, the various the cars that have been invented. One of the very greatest invention of the mankind, the cars. तो कहते इन्होंने देखिए हेडिंग दी है कि दैट जस्ट इमेजिन बिफोर दीज कार्स वर इन्वेंटेड और बिफोर दीज मूविंग मशीन्स लाइक द व्हीलर्स, द फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और द थ्री व्हीलर्स, बिफोर दे वर इन्वेंटेड हाउ वॉज आर लाइफ, हमारी लाइफ इससे पहले कैसी थी. ओके, सो द अर्ली मैन दे डोंट हैव व्हील्स व्हेन द देर इज वॉज नो इन्वेंशन ऑफ व्हील. जब व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई थी, so at that time the early men used to go by their foot if they want to go any place. अगर उनको किसी भी जगह जाना होता था तो वो अपनी पैरों से ही पैदल ही जाते थे. they don't have other vehicles so that they can go, so they go by their foot only, which takes them a lot of time and energy as well. Okay, so here in this topic we'll talk about one of the very important machine, that is car. Car is also a machine. car भी एक machine ही है ना बेटा. Okay, so here the tidbit that is given here. Early cars were very expensive and difficult to drive. In the year 1908, Henry Ford designed a car called Model T Ford, which people could afford. In the next 19 years, he sold near about 1 crore 55 lakh of the cars in the United States, almost 10 lakh more in Canada, also 10 lakh more in Canada, and 22 lakh 50,000 in Great Britain. So, जो Henry Ford थे, okay, so he has invented this moving machine known as car. जो पहले जो मशीन्स थी या जो पहले जो ये कार्स थी दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगी थी एंड उनको ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल था. बट 1908 में जो हेनरी फोर्ड हैं, द फाउंडर ऑफ फोर्ड आपने गाड़ी का नाम सुना होगा, द ब्रांड ऑफ कार्स. सो हेनरी फोर्ड ने एक कार डिज़ाइन की जिसको उन्होंने नाम दिया, द मॉडल ऑफ दैट कार इज़ नोन एज मॉडल टी फोर्ड. Okay, and this name was given and this car was invented, or you can say designed, by Henry Ford. In the next 19 years he sold near about अगले 19 सालों में, okay, after the 1908 he sold near about 1 crore 55 lakh cars in the USA only. अगले 19 सालों में उन्होंने सिर्फ यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही उन्होंने 1 crore 55 lakhs जो कार हैं ज़्यादा बेची, मतलब कार्स बेची ओनली इन द यूएसए. इसके अलावा okay, so the number of cars is sold in the approx that is 1 crore 55 lakhs, but उससे 10 लाख और ज़्यादा, that is 1 crore 65 lakhs, उससे भी 10 लाख और ज़्यादा कार उन्होंने कनाडा में बेची. एंड आफ्टर दैन 2 lakh 50,000 इन ब्रिटेन, एंड उससे 2 lakh 50,000 ज़्यादा ही हैज़ सोल्ड द कार्स इन द ग्रेट ब्रिटेन एज वेल. So this was a very unique invention by Henry Ford in the year 1908, and that became very popular among the people, and the people became aware about this one of the great machine that is known as car. In this topic we'll discuss about the different parts of the car,
different types of the cars that you can see the, or most of you must be having the cars in your houses. So now you'll came to know that what that model of car is known as, उसको model को कैसे क्या बोला जाता है, and what are the different parts of cars that you can see in the car. So here we will start with the topmost part, that is windscreen. So the topmost part, okay, one of the topmost, not the topmost, one of the topmost part of the car is that is windscreen. Windscreen क्या होती है? This is a protective glass and plastic pane. Okay, so the car का जो शीशा होता है आगे वाला, दैट इज़ नोन एंड विंड स्क्रीन. ओके, एंड ये जो विंड स्क्रीन होती है ये शीशा होता है बेटा, बट देयर इज़ अ प्लास्टिक पेन ऑल्सो दैट इज़ अटैच टू इट, कि वेन एवर जब उस कार के शीशे के ऊपर किसी भी तरह का अटैक होता है या कहीं भी जाके वो टकराती है, कि वो शीशा जो है वो टूट के जो बैठा है इंसान उसको ना चुभ जाए, कि उसको ना लग जाए. सो इसलिए दैट ग्लास इज़ दैट प्रोटेक्टिव ग्लास हैज़ प्लास्टिक पेन्स. उसमें प्लास्टिक पेन्स होते हैं दैट डोंट अलाउज द ग्लास टू शटर, जो कि वो कांच को जल्दी शटर होने नहीं देता इन द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़. ओके, कई बार क्या होता है एकदम से कार का शीशा टूट भी जाता है बुरी तरह, बट समटाइम्स मतलब मोस्टली जो कोशिश रहती है जो प्लास्टिक पेन जो उसमें अटैच है, ओके, दैट डोंट अलाउ that doesn't allow the glass of the car to get shattered. तो उसको बिखरने से बचाने के लिए the plastic pane is attached to it so that it doesn't got shatter and stuck into the eyes of the driver or the person sitting along with the driver. Clear? Moving next, that is windscreen wiper. Now the next part of the car that we'll talk about, that is the windscreen wiper. Now what is windscreen wiper? ये windscreen wiper क्या होता है बेटा? So आपने देखा होगा जो windscreen है, जो कार का आगे का शीशा होता है, the bigger one. Okay, so sometimes you must have seen the wiper, there's a wiper that cleans that windscreen. उस windscreen को clean करने के लिए the wiper is attached to the car, that windscreen, that is known as windscreen wiper. ओके, एंड द फंक्शन ऑफ दिस विंडस्क्रीन वाइपर इज़ टू क्लीन द विंडशील्ड. तो जो शीशा है कार का आगे वाला और द विंडस्क्रीन है उसको क्लीन करना ही इस विंडस्क्रीन वाइपर का काम है. ओके, तो इट क्लीन्स द विंडशील्ड. हाउ? ओके, सपोज सम टाइम जब रेन होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम द ड्राइवर्स दे यूज़ दिस विंडस्क्रीन. तो ये विंडस्क्रीन इसलिए यूज़ करते हैं कि जितना भी पानी उनके शीशे पे आगे आ रहा है वो साथ साथ क्लीन होता जाए, बिकॉज अगर लगातार उस पर पानी पड़ेगा तो द ड्राइवर विल नॉट बी एबल टू सी और ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव इन द रेन. Okay, so that's why that windscreen is there, that windscreen wiper is there, which cleans all the water continuously from the windscreen and allows the driver to see clearly even during the heavy rains. Okay, so that is windscreen wiper, which cleans the water, not only the water, not only cleans, but along with that कभी कभी क्या होता है कि जो कार के शीशे के बहुत धूल उड़ जाती बैठ जाती है, so उस टाइम पे दैट windscreen wiper is also used to clean the windscreen. ओके, एंड सिर्फ ये आगे नहीं होता, windscreen wiper is also in front, कई कार्स में पीछे भी होता है. So windscreen wiper is also there in some of the cars, there are windscreen at the back as well. Okay, that is windscreen wiper. Moving next to the third part, that is washer nozzle. So now we are talking about the next part of the car, that is known as washer nozzle. Now what is washer nozzle? It squirts cleaning liquid on the windshield. Okay, वॉशर नोडल क्या करता है, वो व्हेन द स्क्रीन गॉट, जब विंड स्क्रीन गंदी हो जाती है तो जो द ड्राइवर वो अपने कार में अंदर बैठे बैठे ही एक वॉशर नोजल का जो बटन होता है वो दबाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो उसका वॉशर नोज़ल होता है उसमें से कुछ पानी, जो लिक्विड, कुछ पानी या एक क्लीनिंग लिक्विड, और यू कैन से द वाटर, क्लीनिंग लिक्विड भी होता है वाटर में, तो उसमें से निकल के पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है. ओके, द वाटर स्प्रेज मतलब वो पूरी स्प्रिंकल हो जाता है पूरी विंडस्क्रीन के ऊपर, एंड लेटर ऑन दैट वाटर इज़ क्लीन बाय द विंडस्क्रीन वाइपर. तो विंडस्क्रीन के जो वाइपर है उसका वर्क क्या है कि व्हेन the water is squirts
whatever is gets over the windshield by the washer nozzle, then it cleans the windscreen with the windscreen wiper. So this is the function of the windscreen wiper. So it cleans the windscreen with its wiper when the washer nozzle spits water on the screen or the any cleaning liquid on it. Okay, moving next to the fourth one, that is bonnet. So another very important part of the car we'll talk about, that is bonnet. Now what is bonnet? Bonnet, lid like covering which protects the engine. Okay, so bonnet is a lid that covers or that protects the engine, जो कि engine को protect करता है. How it protects the engine? Let's see there. Bonnet, lid like covering which protects the engine. तो ये engine को protect करता है. Okay, so bonnet, as you can see in the पिक्चर दैट इज़ गिवन है. तो पिक्चर में देखिए जो बोनट है, ओके, जिसके नीचे इंजन होता है. तो यहाँ पे कभी भी जैसे आपने देखा होगा, कभी कार ख़राब हो जाती है तो इसको ओपन करके तो उसमें पानी या जो भी डालते रहते हैं कार्स में, ताकि जो इंजन है उसका ठंडा रहे. ओके, सो दिस इज़ दी बोनेट एंड द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द कार. जिसके अंदर जितने भी कार के पार्ट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वाटर और एनी अदर थिंग. ओके, सो दैट इट डजंट गेट हार्म. क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाएंगे द कार विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली और इट विल नॉट रन और इट विल नॉट मूव. Okay, so this the bonnet is the main function of the bonnet that is present over, or that is the function is that is to cover or to protect the engine of the car. Okay, moving next, that is grill. The next is, this is grill. So the grill, you can see here this grill. Okay, the silver portions इस पे ज़्यादातर यहाँ पे लोगो, जो कार के लोगोज होते हैं, that are printed on it. ओके, जो कार के लोगोज होते हैं बेटा, दैट आर कॉमनली दैट इज़ अटैच्ड है और दैट इज़ मेड देयर. यहाँ पे मोस्टली कार के लोगोज होते हैं, लाइक एस होता है सुजुकी का, एंड बहुत अलग अलग कार्स के अलग अलग अपने लोगोज होते हैं. सो दिस व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ग्रिल? इट प्रोटेक्ट्स द रेडिएटर. सो द रेडिएटर इज़ प्रेजेंट बिहाइंड दिस ग्रिल. सो इस ग्रिल के पीछे रेडिएटर होता है कार में, विच इज़ बीइंग protected by this grill. So the function of this grill is to protect the radiator. एक radiator होता है बेटा, this is also part of a functioning is also a functioning what we call it, कि एक कार की मूवमेंट में एक जो कार चलती है तो उसका एक पार्ट है ये, that has a very vital role in the function of the car. Okay, so this grill, it protects the radiator from getting मतलब इंजर्ड और मतलब किसी वजह से ख़राब होने से उसको बचाता है. दिस इज़ द ग्रिल. मूविंग नेक्स्ट टू द हेडलाइट. सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द हेडलाइट वेरी वेल. हेडलाइट आई थिंक सबने देखी होगी, कार की हेडलाइट, स्कूटी की हेडलाइट, बाइक की हेडलाइट. सो हेडलाइट इज़ दी, जिसको हम बोलते हैं आगे, headlight is the light of the car or the any other vehicle. So that is present on the front as well as in the back of the any moving machine. Okay, तो ये चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो. So there is headlight that is present on the in the front of any vehicle and even on the back of the vehicle. Okay, and that is they are specially of the blue and so they are specially of the रेड एंड द येलो कलर होंगे. तो ज़्यादातर जो हेडलाइट्स हैं वो ज़्यादा किस कलर की होती है? रेड एंड येलो. ओके, द रेड इज़ फॉर द स्टॉप एंड द येलो इज़ फॉर द सम लाइट और एनी अदर थिंग. आजकल जो LED लाइट्स आर ऑल्सो देयर. ओके, बट दे आर क्वाइट वेरी हार्मफुल. जो LED की लाइट्स है बेटा वो बहुत हार्मफुल होती हैं, क्योंकि जो अपोजिट आपके ड्राइव करके थे वो आता है, दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी. जब वो आपकी गाड़ी के LED को देखेगा तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन इट्स eyes and that person will not be able to see clearly. So that headlight should be of a proper order, that is being mentioned. Okay, so the headlight lamp on the front of the vehicle, इसको हम बोल सकते हैं कि जो vehicle है हमारा उसके फ्रंट में, उसके सबसे आगे जो लैम्प होता है, that is known as headlight. Okay, and during the night, so these lamps were switch on. या इन हेडलाइट्स को जलाया जाता है and the person he moves according to the way. तो हेडलाइट की रोशनी की हेल्प से वो देखते हुए रास्ता अपने अंधेरे में भी ढूंढ लेता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द हेडलाइट. ओके,
Next is the wing. Okay, the next is the wings. Part of the body forming a casing around the wheels. Okay, so part of the body forming a casing around the wheels, that is known as wing. Okay, so the portion that you can see, the गोल जो wheels के ऊपर जैसे cut है बेटा, that is known as wing. Okay, ये this the function of this wing is to protect. The function of this wing is to protect the wheels of the car. अपनी कार की जो wheels होती है उनको protect करना. This is the function of the wing. ओके तो आपने देखा होगा कार्स कहीं थोड़ा सा अलग से बाहर से भी निकला होता तो एवरी कार हैज़ देयर ओन डिज़ाइन. ओके बट द फंक्शन ऑफ द विंग ऑफ एवरी कार इज टू प्रोटेक्ट द व्हील्स ऑफ द कार. Okay, part okay, so or you can see this is the function of the wing, but what is it? So wing is the part of the body forming a casing around the wheels. तो ये wheels के आसपास एक केस बना देता है, एक पिंजरा बना देता है, that so that they can protect the wheels of the car. That is wing. Okay, so these are the some parts. Some more parts are given on the page, next page, so I'll just open it. Just give me a second. Okay, so this is the next part. Okay, so I'm just starting it with here. So now we'll talk about some other parts of the car, that is the backward part of the car, पीछे और ऊपर part जो है. Okay, after the wing, the next is starting from the upper portion only, that is sunroof. Okay, सबसे ऊपर portion of the car is that is sunroof. Now what is sunroof? Sunroof is the uppermost part of the car. जो हम छत बोल लीजिए, that is known as sunroof. So moving part in the roof that opens up. Okay, so every car does not have this feature of sunroof. So हर कार के पास ये sunroof का feature नहीं होता है. ओके, कुछ कार में सनरूफ खुलता है, कुछ में नहीं खुलता है. आपने देखा होगा कई लोग कार की छत को खोल के उसमें से बाहर तो दे जस्ट वॉच आउटसाइड. सो दैट इज़ सनरूफ. ओके, बट दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल all the cars. Some of the cars have this unique feature. Okay, and that moves मतलब उसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं. That depends upon the person who is driving or who is sitting in the car. Okay, so this is the sunroof. Okay, the basic function of the roof is that it can move. Okay, if somebody wants to open it, he can or she can open it. If somebody wants to close it, so that person can even close it as well. नेक्स्ट इज़ द एरियल. एरियल आपने सुना होगा, देखा भी होगा, एक लंबी सी तार. ओके, यू कैन सी हेयर, दैट इज़ द एरियल. ओके, एंड द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एरियल? टू रिसीव रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट. ओके, सो एवरी कार हैज़ देयर ओन म्यूज़िक सिस्टम. एवरी कार हैज़ म्यूज़िक सिस्टम. हर कार के अंदर म्यूज़िक सिस्टम होता है. ओके, हर कार के अंदर म्यूज़िक सिस्टम होता है. ओके, एंड सम पीपल दे यूज़ टू प्ले कैसेट्स एंड थ्रू पेन ड्राइव सॉन्ग्स चलाते हैं. एंड सम पीपल दे प्ले द FM. ओके, दे लिसन टू द ट्रैफिक, व्हाट इज़ द ट्रैफिक इन विच एरिया, और सब कुछ लोग गाने सुनते हैं. ओके, एंड ऑल दैट इज़ ब्रॉडकास्टेड इनसाइड द उस म्यूज़िक सिस्टम में. वो सारी आवाज़ें कैसे आती है, रेडियो से कैसे कनेक्टेड होता है. सो दैट इज़ कनेक्टेड टू द रेडियो थ्रू इट्स एरियल. ओके, सो इसको थोड़ा कहीं में बड़ा भी कर देते हैं, किसी में छोटा भी. दैट अपॉन डिपेंड्स कि आपको कैसा करना है. सो एवरी कार हैज़ द एरियल. ओके, एंड दिस एरियल हेल्प्स टू रिसीव द सिग्नल्स और द रेडियो वेव्स दैट इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड. नेक्स्ट इज ड्रिप मोल्डिंग. दैट इज द ड्रिप मोल्डिंग. द स्मॉल ओपन कैनाल दैट कैप्चर्स एंड ड्रेन्स रेन वाटर फ्रॉम द रूफ. आपने देखा होगा किसी जो कार की जो शीशे के ऊपर से गोल करके जो होता है. ओके, दैट इज़ नोन एज ड्रिप मोल्डिंग. दैट इज़ नोन एज ड्रिप मोल्डिंग. दैट द कर्व्ड पोर्शन ऑन दी विंडो ऑफ द कार. ओके, सो इसका जो मेन फंक्शन होता है द कर्व्ड पोर्शन. ओके, सो ड्रेन द वाटर, टू ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ. तो अगर छत से कोई भी पानी गिरता है या बारिश होती है तो उस टाइम पे अगर वहाँ पे जो ये ड्रिप मोल्डिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट सारा पानी क्या हो जाएगा, कार के अंदर आएगा. सो देयर इज़ अ ड्रिप मोल्डिंग ऑन द कार. कार के ऊपर एक ड्रिप मोल्डिंग होती है दैट डजंट अलाउ द रेन वाटर टू कम आउटसाइड. या जब पानी
डाला जाता है वॉश करने के लिए कार्स को, तो पानी उसका अंदर आने के चांसेस होते हैं. सो दैट्स वाई दिस ड्रिप मोल्डिंग इज देयर, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट्स द वाटर टू कम इनसाइड द कार during the rain or during the washing. Next is boot. Now we're talking about the boot. Enclosed space at the back of the vehicle to hold cargo. Okay, boot is the जिसको हम बोलते हैं डिक्की. Okay, so the boot is known as the dicky in the cars. Okay, so the boot, the जिसको हम डिक्की बोलते हैं, so that is made in the car to the enclosed space at the back of the vehicle to hold cargo. Cargo means सामान रखने की जो जगह होती है in the car at the back, जिसको हम डिक्की बोलते हैं, that is known as boot. That is known as the space that is made in the car, or that is in the car to um, hold the cargo, to hold the जो भी उनका सामान हो उसमें रखने के लिए. नेक्स्ट इज़ द फ्यूल टैंक फ्लैप. फ्यूल टैंक फ्लैप कंसीलिंग द फ्यूल टैंक ओपनिंग. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक फ्लैप. आपने देखा होगा कार्स में जब पेट्रोल डलवाते हैं तो पहले वो एक ढक्कन खोलते हैं, एंड देन उसके बाद एक और ढक्कन खोलते हैं गोल घुमा के, एंड देन दे पुट द पेट्रोल और द डीजल इन द कार, एंड आफ्टर देन दे क्लोजेज दैट फ्यूल टैंक का जो ढक्कन है उसको बंद करते हैं, एंड देन उसके ऊपर एक और ढक्कन होता है. So that the another ढक्कन, the topmost flap, the topmost portion of that flap is that is known as flap. जो फ्यूल टैंक के ऊपर सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज फ्लैप, जो कि फ्यूल टैंक को प्रोटेक्ट करता है. ओके, दैट कंसील्स और दैट कवर्स, इन शॉर्ट नॉट प्रोटेक्ट, यू कैन से दैट इट कवर्स द फ्यूल टैंक. ओके, एंड दिस इज फ्यूल टैंक फ्लैप. नेक्स्ट, व्हील ट्रिम. द व्हील ट्रिम्स क्या होती हैं? मेटल और द प्लास्टिक पार्ट कंसीलिंग द व्हील हब. ओके, यू कैन सी हियर, देखिए कार्स के जो टायर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, उसके पास आपने देखा होगा वो गोल गोल, दिस इज़ हेयर दे आर पॉइंटिंग एज वेल, तो उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की कोटिंग भी होती है जो व्हील्स को पूरी तरह से कवर करता है. दैट डजंट अलाउ टू सी द व्हील्स मूवमेंट, सो दैट इज़ नोन एज व्हील ट्रिम. ओके, कई कार्स का जो बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार्स होती हैं उनका व्हील ट्रिम बड़ा ही यूनिक सा होता है कि उनके व्हील्स आगे चलते हैं, बट एट द व्हील ट्रिम इट सीम्स लाइक इट इज़ मूविंग बैकवर्ड, सो इट इज़ वेरी, देखने में बड़ा अच्छा लगता है देखने में. That is wheel trim, and that is stuck to the wheels of the cars. Next is the tire, और all of you are very well aware of the tires क्या होते हैं. ठीक है, the wheels जिसको हम बोलते हैं tires. Next is the door lock. The door lock is जिसको हम पकड़ के खींचते हैं, then the door opens, so that is known as door lock. Inner lock भी होता है, inside lock भी होता है, child lock भी होता है, the different types of locks, but here we are talking that all these interlock or child lock, ये सब किस लिए होते हैं? These all are to lock the doors. ये किस लिए होते हैं? These all are for locking the doors. Okay, this is the door lock. नेक्स्ट, डोर मीन्स दरवाज़ा. सो किसी भी कार का जो दरवाज़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जिससे कि हम जाते हैं अंदर बाहर, मतलब वी सेट, वी गेट अप एंड वी कम आउट, दिस इज़ द डोर. डोर मीन्स दरवाज़ा. नेक्स्ट, body side molding. Now what is body side molding? Metal or the plastic part of to protect against light impact. Okay, सो जो बॉडी होती है कार की, जो बाहर की बॉडी होती है, देखिए दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, बट एक्चुअली द होल पार्ट इज कवर फ्रॉम द बॉडी साइड मोल्डिंग. ओके, जो कि जो कार की मेटल और प्लास्टिक बॉडी होती है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ उसके अंदर ना जा सके, दैट इज नोन एज बॉडी साइड मोल्डिंग. क्लियर? सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ विल टॉक अबाउट in the previous topic that will talk some types of cars. अब हम कुछ types of cars के बारे में बात करेंगे. The first is sedan. The first type of car is sedan. Sedan किस type of cars को बोला जाता है बेटा? देखिए, it is a car that can seat 4 or more people and has extended boot. ये एक ऐसी कार है जिसके ऊपर सीट भी होती है. ओके, एंड इसके okay, the sitting capacity of this sedan car is 4 to 5 people comfortably. Okay, and जो it has a extended boot space. इसका जो extended एक बड़ा हुआ boot space होता है जिसको कि हम डिग्गी होती है, उसकी डिग्गी अलग से होती है, that is known as sedan car. Okay, so the sitting capacity of the sedan car is near about 4 to 5 persons comfortably. Next example for the sedan is that is what
सीडान की एग्जाम्पल बहुत हैं, मेरे को भी दिमाग में होंडा सिटी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सीडान, सियाज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, एंड these are Maruti Swift Desire, they all are the examples of sedan cars. Next is the hatchback. The next is the hatchback. It is a car with the door at the back and which opens upward. Okay, so now we are talking about the another car that is hatchback. So जिसका जो जैसे ही देखिए sedan में जो थोड़ा boot space होता है वो बहुत अलग होता है as compared to उसमें अलग से दिया होता है, so that you can put lots of cargo into it. बट हैशबैक कार में कुछ अलग से नहीं होता, दे हैव ओनली दे डू हैव द बैक डोर्स, उनके भी बैक डोर्स होते हैं, बट इन द हैशबैक कार्स यू कैन पुट योर कार्गो ओनली बीनीथ द सीट, जो सीट के नीचे जितनी भी बची हुई जगह होती है दैट इज़ नोन एज द बूट फॉर दैट हैशबैक कार्स. तो इनका कुछ बड़ा नहीं होता, द एज कम्पेयर टू सीडान कार्स द दीज हैशबैक कार्स हैज़ लेस स्पेस इन द बूट स्पेस. नेक्स्ट इज SUV. The next SUV की full form क्या है? Sports Utility Vehicle. It is a car that has been designed for rough spaces. It is designed to carry passengers as well as cargo. ओके, तो ये SUV कार जो है जिसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ये डिज़ाइन की गई है किसी भी रफ सरफेस में, कहीं भी ऊंचे खाली इलाके में जाना हो, सो दैट टाइम दिस SUV कार्स आर क्वाइट वेरी कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू द अदर कार्स. ओके, और इसके और इट कैन कैरी, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि दैट यू कैन कैरी द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू इट, आप पैसेंजर्स भी ले जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कैरी सम ऑफ द कार्गो इनटू इट. सो दिस इज SUV. नेक्स्ट इज MUV. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MUV? दैट इज मल्टी यूटिलिटी व्हीकल. मल्टी यूटिलिटी व्हीकल. So this spacious car is capable of carrying 5 to 8 passengers or the luggage with foldable seats. It is designed for the long distance comfort. ओके, सो आई वॉज गिविंग यू एग्जाम्पल. ओके, आई फॉरगॉट टू गिव द एग्जाम्पल. ओके, देखिए सीडान की मैंने दी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, होंडा सिटी. हैशबैक कार्स की एग्जाम्पल है दी वैगनार. वैगनार इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द हैशबैक कार्स. नेक्स्ट इज SUV. SUV के लिए वी विल हैरियर, फॉर्च्यूनर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ SUV कार्स. नाउ MUV. तो MUV कार्स क्या होती हैं? दैट हैज़ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 5 to 8 persons. ओके, सो वाइल फोल्डिंग देयर सीट्स यू कैन पुट लॉट्स ऑफ, उसकी जो सीट्स फोल्ड हो जाती हैं तो आप उसमें ढेर सारा अपना सामान रख सकते हो, एंड सीट ओपन करके यू कैन सिट नियर अबाउट 8 पैसेंजर्स कैन सिट इन दैट MUV कार. सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द MUV कार्स इज दिस इज द Innova. Innova car is the Innova. This is the best example for the MUV cars, and it is designed for long distance comfort. तो लंबे डिस्टेंस के लिए दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार, आपने देखा होगा. सो मोस्टली द टूरिस्ट दे प्रेफर टू गो थ्रू Innova बिकॉज दिस कार इज़ क्वाइट वेरी कंफर्टेबल. नेक्स्ट इज़ द स्पोर्ट्स कार. तो नेक्स्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ स्पोर्ट्स कार. इट इज़ अ 2 सीटर्स हाई स्पीड कार. ये एक 2 सीटर कार है जिसकी स्पीड बहुत है. स्पोर्ट्स कार की स्पीड में जस्ट ओनली 2 persons कैन सिट इन अ स्पोर्ट्स कार, बट द स्पीड ऑफ द स्पोर्ट्स कार इज़ वेरी हाई. ओके, तो इसको स्पोर्ट्स कार दिस आर मेनली यूज फॉर रेसिंग पर्पजेज एज वेल, and they are quite very costly than the other normal cars. So this is sports car. Next, okay, next there the tidbit is given. In a hybrid car, the engine can run on 2 or more sources of power, one being conventional internal combustion engine and other of the different power source. Find out some of the power sources on which cars can run. ओके, तो देखिए जो हाइब्रिड कार है वो 2 तरीके से चल सकती है. ओके, तो इट कैन रन थ्रू मोर और सोर्सेज ऑफ इंजन, या तो जो कन्वक्शन इंजन उसके अंदर होते हैं उससे भी, और दूसरा कि अदर कोई भी और पावर सोर्स उनको मिल जाए. सो दे कैन रन ऑन बोथ दी आर्ट्स. Okay, so now let us unusual cars. So the first car is solar powered cars. These cars have solar panels which turn sunlight into electricity that drives the car. So सबसे पहली कार जिसकी हम बात करें सोलर पावर्ड कार. जो सोलर पावर्ड कार होती है दे रन थ्रू सोलर एनर्जी. ठीक है, इसकी सोलर एनर्जी से चलती है. इसमें सोलर पैनल्स होते हैं जो सन से एनर्जी लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, एंड देन दीज कार्स कैन रन वेरी स्मूथली ऑन द रोड्स विद दैट एनर्जी. नेक्स्ट इज स्ट्रेच लिमोजिन. लंबी जो लिमोजिन्स होती हैं इसमें सीटिंग कैपेसिटी होती है 10 लोगों की. ओके, एंड दे आर मोस्टली कंसिडर्ड वन ऑफ द रॉयल कार्स में रहता है. तो जो बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज होती है दे मूव अलॉन्ग इन दिस ग्रेट लिमोजिन. ओके, दे आर वेरी स्ट्रेच, बहुत ही लंबी कार्स होती हैं, लंबी होती हैं.
Next is amphibious cars. This car is as efficient in the water as in on the land, on the road. So amphibious cars कौन सी होती है? They can run on land as well as in the water. So amphibious cars जो होती हैं बेटा, ये पानी में भी चल सकती हैं एंड सड़क पे भी चल सकती है. लास्ट इज द लूनर रोवर. द लूनर रोवर मून बगी वॉज द फर्स्ट कार ऑन द मून. द लूनर रोवर एक ऐसी बगी है, एक कार है, ओके, जो कि सबसे चांद पे जाने वाली सबसे पहली कार है. सो दिस इज काइंड ऑफ बगी कार. बगी जो मतलब थोड़ी हल्की होती है, ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट कार दैट हैज़ वेंट इनटू द स्पेस. Okay, so with this I'm just ending through this session here only. So I'll see you again very soon in the next session. So till then everybody have a great day.